Good afternoon, student. As you all know, that the whole world is under the effect of this coronavirus, and we are facing a lot of problem in the education field as well as in each and every field. So we have decided that we have to go with this online classes so that you won't suffer at the end of this years too. So you are all are requested to go with all these video, increase your education, and keep yourself safe too. As you know that on 15, our Prime Minister had announced that this lockdown has been increased to 3rd of May, and it will not even been decided that it may increase to. So we cannot go up with the loss of our studies. So from today onward, we are going to start your classes, and I would like to welcome you all and congratulate you all to be a part of class 9th. So this is Deepak Sharma who will be teaching you physics as your whole science. From now on, when in class 9th, you would be having 3 subjects: physics, chemistry, and bio, which will be taught by different teachers. I would be teaching you physics. The other one, the chemistry, will be taught by different teacher, and the biology by different teacher. So I welcome you all to be a part of this physics class. So let me introduce first of all that what would be your curriculum. What exactly curriculum is? The curriculum has been designed by CBSE. No one else can, no publisher can change the chapters. As I got information that some of the students were a little bit confused that you would be getting the book you would be getting book from the school itself. So let me clear you children that you can purchase NCERT book of 9th class from any bookseller what you would have, or if possible, if you won't be getting a new book, you can have it from your previous students itself. Previous student can also take, you can take those book from previous student itself too, because their course would be remaining as same, the book would be remaining as same. So curriculum, I was telling you about the curriculum, that what is curriculum is. You can download that curriculum from CBSE site too. It is a spreadsheet in which whole years, whatever you would be having in your whole year is being already planned. How many chapters there, what are the topics been there, everything has been planned. You have to just go on through the website of CBSE, www.cbse.nic.in, and scroll it for curriculum, and you can easily get that science curriculum very easily. So you can go www.cbse, it been already planned from CBSE itself. So let me make you, today is 17 for 2020, and that's your subject physics. Let me make you clear that total there are 15 chapters in your syllabus, in which among them 5 chapters is of physics. And what are the name of these chapters? The first chapter would be chapter 8, that is motion. The other one will be your force and laws of motion. Next would be your gravitation. Next will be your work, energy, and power. And next will be, and the last chapter would be sum. So these are the 5 chapters, 1, 2, 3, 4, 5, which belongs to physics. You have to complete these 5 chapters in your whole syllabus. So starting from the very first part, we have to go with our first chapter, that is motion. So for the interaction, I would be using both of the languages.
इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो अब हमें अपना शुरू करना है। तो चैप्टर नंबर 8 है हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से, दैट इज योर मोशन। कि मोशन एग्जैक्टली होता क्या है। वह मोशन ऐसा वर्ड है जो आपने पहले कई बार सुना होगा, मोशन में है, ये चीज मोशन में है। ठीक है, और अगर मैं इससे मोशन को समझने से पहले इसको एक और वर्ड को समझना जरूरी है, दैट इज योर रेस्ट। अब मैं थोड़ी सी सीनियरिटी की बात करूं, थोड़ी सी सीनियर क्लासेस की मैं बात करूं, तो हमारी जो फिजिक्स का ये जो चैप्टर है, ये जो मोशन और रेस्ट, ये चैप्टर हमारा किसको बिलोंग करता है? फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक वो ब्रांच है फिजिक्स की दैट डील्स विथ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of physics that deals with object in motion। ऑब्जेक्ट इन मोशन में डील करते हैं, उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स कहते हैं। वो ब्रांच है हमारी मैकेनिक्स कहलाएगी। तो इस मैकेनिक्स की वैसे अगर मैं और बात करूं तो ये मैकेनिक फिर हमारी सब डिवाइड होती है 3 ब्रांचेस में, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक, तो ये हमारी 3 ब्रांचेस हैं, और उसमें से भी अगर मैं कहूं मैकेनिक्स की किस ब्रांच से ये चैप्टर है, तो ये मोशन वाला चैप्टर जो है बेटे, ये काइनेमैटिक्स से है। ये काइनेमैटिक्स से है। अभी काइनेमैटिक्स क्या होता है? काइनेमैटिक्स ये मैकेनिक्स की ब्रांच है। फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है? मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स की कौन सी ब्रांच है? काइनेमैटिक्स। मैं इसको यहां से हटा देता हूं। काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है, काइनेमैटिक वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हो, लेकिन बट यू डू नॉट डील विद द कॉज ऑफ मोशन। मतलब मोशन कैसा हो रहा है, किन फैक्टर से डील कर रहा है, ये तो आप पढ़ते हो काइनेमैटिक में, लेकिन कौन उसको मोशन को करवा रहा है, उसके बारे में आप काइनेमैटिक्स में डिस्कस नहीं करते। तो काइनेमैटिक्स क्या है? आपकी ब्रांच दैट डील्स विथ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट but does not deals with cause of motion। कि मोशन किसकी वजह से हो रहा है उसके, यानी हम, अगर आप देखें तो मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। कॉज ऑफ मोशन, मोशन एग्जैक्टली किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से। और इस पूरे चैप्टर में जो आपका चैप्टर नंबर 8 मोशन है, इसमें आप फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करोगे। तो इसका मतलब, और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें फोर्स ही आएगी। तो ये जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये डिफरेंट चैप्टर, अलग डिफरेंट चैप्टर है। तो यहां पे आप जो स्टडी करने वाले हो वो काइनेमैटिक। तो इस पूरे चैप्टर में आप फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करोगे, क्योंकि आप जो स्टडी कर रहे हो वो काइनेमैटिक्स को स्टडी कर रहे हो। काइनेमैटिक्स यानी काइना, अगर मैं इसे और भी कहूं तो आप जाके सुनो, काइनामैटिक्स, ये दो हैं। यानी काइना मीन्स होता है मोशन। मोशन को केवल मैट्रिक्स माने होता है मैथमेटिक्स, मैथ से आपने सॉल्व करना है, उसे हम कहते हैं काइनेमैटिक्स। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई वो ये कि ये चैप्टर, हमें जो चैप्टर नंबर 8 जो सबसे पहला चैप्टर शुरू करना है वो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है मोशन। मोशन का अपोजिट होता है रेस्ट। और ये चैप्टर फिजिक्स की मैकेनिक्स ब्रांच का है। और मैकेनिक्स जो है वो क्या होती है? मैकेनिक वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हो। मैकेनिक्स 3 पार्ट में डिवाइड होती है। स्टैटिक्स, जिसमें आप एक ऑब्जेक्ट के रेस्ट के बारे में पढ़ते हो, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे रुका हुआ होता है तब क्या होता है। काइनेमेटिक्स में आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हो, लेकिन उसके कॉज के बारे में नहीं पढ़ते हो, क्यों वो हो रहा है मोशन, उसके बारे में आप नहीं पढ़ते हो। डायनामिक्स में आप, अगर मैं बोलूं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूं, तो डायनामिक में मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
कॉज ऑफ मोशन, एंड कॉज ऑफ मोशन, कैसा मोशन हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कॉज ऑफ मोशन, दोनों में आप पढ़ते हो तो उसे हम कहते हैं डायनामिक्स कहते हैं। तो ये चैप्टर हमारा डील बेसिकली किससे करेगा, डायनामेट्री, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, में ऐसे लिखना पड़ेगा कंप्लीट, मैकेनिक्स की ब्रांच है, मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है और काइनेमेटिक मैकेनिक्स की ब्रांच है, दैट डील विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट डज नॉट डील विद द कॉज ऑफ मोशन। ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना होगा। तो अब हम आगे इसे पढ़ें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला वर्ड जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है, सबसे पहला वर्ड है मोशन। और इस मोशन को समझने के लिए हमें, और मोशन और जब इसका अपोजिट है रेस्ट, इस मोशन और रेस्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक वर्ड को समझना पड़ेगा जिसका वर्ड मतलब, जिसका जो वर्ड है पोजीशन, और पोजीशन एंड एक दूसरा वर्ड को और हमें पढ़ना है, दैट इज रेफरेंस पॉइंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन वर्ड क्या होता है और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ताकि हम इन वर्ड मोशन और रेस्ट को समझ सके। अगर मैं एग्जांपल देखूं तो आपके पास भाई हवा चल रही है, चलना मोशन है, उससे पत्ते हिले, वो भी मोशन में आ गए। आप चल रहे हैं, आपने चलना मूवमेंट करना शुरू कर दिया, आप कहेंगे आप मोशन में हैं। आप एरोप्लेन को देख रहे हैं, एरोप्लेन उड़ रहा है, तो आप कहेंगे वो मोशन में है। ट्रेन को आपने देखा रुकी हुई थी, आप कहेंगे भाई रेस्ट पर है, और उसके बाद आप वो चलने लगे, आप कहोगे भाई मोशन में आ गई। तो मोशन के हमारे अराउंड, अगर इनफैक्ट अर्थ की बात करो, हम लिखते हैं भाई अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो इसका मतलब अर्थ भी किस पर है, मोशन में है। तो ये ऐसा वर्ड तो नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन मोशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल पहले मैं आपको देता हूं ताकि आप समझ पाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को। आप सपोज कीजिए आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है, और जब वो ट्रेन चल रही है तो आप अगर बैठे हैं तो आपको क्या लगेगा, क्या आपको लगेगा कि आप चल रहे हैं? नहीं, आपको लगेगा भाई आप बैठे हैं, आपका फ्रेंड सामने बैठा हुआ, भाई आप भी रुके हुए हैं और वो भी रुका हुआ है। लेकिन फिर आप तुरंत अपने जो विंडो खोल देते हैं, उस ट्रेन की विंडो खोल देते हैं, क्या देखते हैं? आप जब बाहर झांकते हैं तो आपको दिखता है अरे वो सामने वाले पेड़ पीछे जा रहे हैं और ट्रेन आगे जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जब विंडो बंद थी तो आपको लगा था आप इस पर है रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपका फ्रेंड भी सामने बैठा हुआ था, वो भी रुका दिख रहा था और आप भी रुके हुए दिख रहे थे। लेकिन जब ट्रेन चलने लगी, जब आपने विंडो खोली तो आपने बाहर की चीजों को देखा और आपको लगा नहीं भाई ट्रेन रुकी हुई नहीं है बल्कि चल रही है। मैं और एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। आप एक सेब को लीजिए या कोई भी एक फ्रूट लीजिए, कोई नहीं है यार सेब ही लेना है आपने, कोई भी एक चीज लीजिए और उसे आप ट्रेन के अंदर उछालिए। आप उसे ऊपर उछालेंगे तो वापस वो आपके हाथ में आएगी। लेकिन ट्रेन से बाहर उछाले, अगर विंडो पे बाहर आपने हाथ डाल के उछाल दिया तो क्या वो वापस आपके आएगी? तो ये क्या है? ट्रेन विंडो बंद है तो आप रेस्ट पर है, और विंडो खुली है तो आपको दिख रहा है आप मोशन में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसीलिए मैंने कहा इसको समझने के लिए एक वह इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे हम कहते हैं पोजीशन। पोजीशन किसे? पोजीशन। लेकिन मेरी क्या पोजीशन है वो मैं कैसे जानूंगा? तो उस पोजीशन को जानने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पड़ा है, रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट क्या है? ये रेफरेंस पॉइंट क्या है? एक ऐसा पॉइंट है, इट इज अ पॉइंट दैट डिटरमाइंस योर मोशन। जो ये कहता है कि आप, जो ये डिटरमाइन करता है, ये बताता है कि आपने मोशन किया भी है या नहीं किया, क्या आप मोशन करा भी नहीं है। मतलब भाई आप, अगर मैं छोटी क्लास में बात करूं तो एक लाइन आप लिखते रहे, सन अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। या कितनी चीजें हैं? अर्थ, दूसरा वर्ड कौन है हमारा? सन। तो अगर मैं ये लिख देता अर्थ घूम रही है तो काफी नहीं था क्या? क्या ये लिखना जरूरी था कि अर्थ सन के अराउंड घूम रही है? बस
बस यही चीज समझनी है आपको। ये जो अर्थ सन है जिसने ये बताया कि हाँ भाई अर्थ चल रही है, वही है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जो ये बताता है कि आपने मोशन किया भी है या नहीं किया है। मैं और इसका क्लोज एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत क्लोज एग्जांपल देता हूं। आप सोचिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप एक ट्रेन में बैठे हुए होते हैं। ये ट्रेन है हमारी, मैं यहां ट्रेन में बैठा हुआ हूं, ये मेरी ट्रेन है और यहां एक शॉप है, यहां तो शॉप है, ये बुक शॉप है, ये आपके पास टी स्टॉल है, ये आपके पास मेडिसिन शॉप है और आप इस ट्रेन में इस डिब्बे में बैठे हुए हैं। समझ मैं 1 2 3 4 फोर्थ वाले डिब्बे पे आप बैठे हुए हैं, तो सॉरी सेकंड वाले डिब्बे में आप बैठे हुए हैं। अब आप सोचिए क्या होता है। ये पटरी पे ट्रेन है आपकी और ट्रेन जब शुरू में स्टार्ट होती है तो ये समझ में नहीं आता आपको कि ट्रेन आगे की तरफ जा रही है या पीछे की तरफ आ रही है, समझ ही नहीं आता। तब आप एक बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट करते हो साइंस का। आप जब बैठे होते हो तो आप ये देखते हो कि भाई इधर तो मेरे पास बुक शॉप थी, इधर मेरे पास टी शॉप थी और यहां से पूरी मेडिसिन शॉप दिखाई दे रही थी। फिर क्या हुआ? अब अगर ये ट्रेन आगे की तरफ गई है तो क्या होगा? मुझे ये टी शॉप दिखना बंद हो जाएगी और मेडिसिन शॉप दिखना शुरू हो जाएगी। और अगर ये ट्रेन पीछे की तरफ गई है तो मुझे मेडिसिन शॉप दिखना, टी शॉप दिखना बंद हो जाएगी, लेकिन बुक शॉप दिखना क्या हो जाएगी? शुरू। यानी मेरे सामने पहले टी शॉप थी, इधर और उधर बुक और मेडिसिन शॉप थी। अगर ये आगे गई तो मैं मेडिसिन शॉप के पास आ जाऊंगा। तो मेडिसिन शॉप ने बताया भाई ट्रेन आगे की तरफ गई है, और अगर मुझे बुक शॉप के सामने में आ गया तो समझ में आ जाएगा कि भाई ट्रेन पीछे की तरफ गई। तो ये बुक शॉप, टी शॉप, मेडिसिन शॉप क्या है? ये काम कर रहे हैं रेफरेंस पॉइंट का। मैं और इसका और अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। आप यहां खड़े थे, आप यहां थे और मैं यहां खड़ा था। ये मैं हूं दीपक शर्मा और ये आप हैं, स्टूडेंट हैं आप, और हम दोनों आमने सामने खड़े थे। फिर क्या हुआ? आप भी कहीं चले गए और मैं भी कहीं चला गया। फिर आप वापस आए, मैं भी वापस आया, और आपने मुझे नहीं देखा और मैंने आपको नहीं देखा था। भाई आप पहले चले गए थे, मैं बाद में गया। और जब मैं वापस आया तो मैंने कहा भाई मैं तो बहुत थक गया हूं भाई, पूरे स्कूल का पूरे इतना घूमकर मैं आया और घूमकर आगे मैं तो पूरा थक गया हूं। अब है क्या, आप मुझे वहीं खड़ा हुआ देखोगे जहां मैं पहले खड़ा हुआ था। तो क्या आप मेरा मोशन मानोगे? नहीं मानोगे। आप कहोगे सर जब मैं यहां पे खड़ा हुआ था तब भी आप मेरे सामने खड़े हुए थे, और जब मैं वापस आया मैंने देखा तो मैंने आपको वहीं पाया जहां पहले खड़े हुए थे। तो इसका मतलब झूठ बोल रहे हो, आपने मोशन नहीं किया। लेकिन उसी समय अगर आप कहीं चले जाते और मैं केवल अपनी पोजीशन को यहां से हटकर मैं थोड़ा सा बस यहां चला जाता, पहले पूरे स्कूल में या पूरे ग्राउंड में घूमकर आया था और वहीं खड़ा हो गया था जहां मेरी पहली पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन, तो आपने मेरे मोशन को नहीं माना। लेकिन मैं पूरे स्कूल करने के आप कहीं चले जाते और मैं थोड़ी सा अपनी जगह चेंज कर देता तो आप कहते हैं सर आपने मोशन किया है। आप पहले मेरे पहले आप यहां खड़े हुए थे, अब आप यहां खड़े हो, तो आपने मेरे मोशन को मान लिया। मतलब क्या है? आपकी पोजीशन मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट का काम कर रही थी। आपकी पोजीशन क्या थी? मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट थी। मेरा अगर आपके पास अब पहले आप ये मान लीजिए एक फ्रेंड आपका यहां खड़ा था, आप यहां थे, आप थे ए और वो था बी। आप कहोगे सर आप पहले मेरे सामने खड़े हुए थे, अब आप मेरे फ्रेंड के सामने खड़े हो, तो इसका मतलब आपने पोजीशन चेंज कर दी। लेकिन अगर वापस घूम के पूरे घूमकर मैं वहीं खड़ा हो जाता जहां पहले खड़ा था, तो आप कहते हैं भाई सर आपने पोजीशन चेंज नहीं की है। तो किसी मोशन को करने के लिए, मोशन को डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए उसका रेफरेंस पॉइंट का सेट होना बहुत जरूरी होता है। तो अब रेफरेंस पॉइंट से डिसाइड कर दो। वो रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है आपको, जैसे ये अर्थ के लिए क्या बन गया था? रेफरेंस पॉइंट बन गया था। ऐसे रेफरेंस पॉइंट आप जब चुनते हो तो वो रेफरेंस पॉइंट मदद करता है आप इसको जानने के लिए कि आप क्या मोशन हुआ है या नहीं हुआ है।
रेफरेंस पॉइंट चेंज होना चाहिए। ये अभी इस समय मेरे लिए बोर्ड रेफरेंस पॉइंट है, मैं इधर उधर चला जाऊंगा, मैं बोर्ड से अलग चला जाऊंगा तो मैंने पोजीशन चेंज कर दी। मैं अभी यहां आपके सामने खड़ा हूं, मैं वीडियो आपको दिखाई दे रहा हूं, अगर मैं थोड़ा इधर हो जाऊं तो मैं आपको शायद दिखना बंद हो जाऊं, इसका मतलब मैंने मोशन कर दिया। लेकिन मैं यहीं इधर उधर घूम के दोबारा खड़ा हो जाऊं तो आप मेरे मोशन को नहीं मानेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड तो समझना जरूरी है रेफरेंस पॉइंट और पोजीशन, और यही चीज है, यही इन दोनों वर्ड की मोशन की कंप्लीट डेफिनेशन जो बच्चे लिखते हैं वो यही है। व्हाट इज मोशन? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन of an object with reference point, with respect to, आप लिखें with respect to some reference point, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोशन चेंज होना, change in position of an object with respect to some reference point is known as motion. And if an object does not changes its position with respect to, WRT का मतलब होता है with respect to some reference point, it means object is at rest, यानी ऑब्जेक्ट किस पर है? ऑब्जेक्ट किस पर है? रेस्ट पर है। तो रेस्ट क्या है? आप पूरे घूम के अगर आपका रेफरेंस पॉइंट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो आप रेस्ट पर है, और अगर रेफरेंस टाइम में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो आप क्या कहेंगे? उसे मोशन कहेंगे। तो मेरे ख्याल में ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। एक ये वर्ड रेफरेंस पॉइंट क्या है? हर किसी आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट से ही आप मोशन को डिटरमाइन कर पाएंगे, पहला वर्ड। और मोशन का दूसरा अपोजिट, इसका अपोजिट होता है रेस्ट, कि आप रेस्ट पर हैं या नहीं है। अगर कोई चीज अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है रेफरेंस पॉइंट पर के टाइम में तो इसका मतलब उसके अंदर मोशन नहीं है, लेकिन अगर वो चेंज कर रही है तो इसका मतलब उसका मोशन हुआ है। अब हमारे पास वैसे तो बहुत सारे मोशन के टाइप होते हैं, लेकिन हम बेसिकली सारे मोशंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, या आप रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी के अपन में ना पढ़े, रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधे चल रहा है तो इसका मतलब उसका मोशन क्या कहलाएगा? रेक्टिलिनियर कहलाएगा। अगर किसी में मैं यहां पे मैं कंफ्यूज ना हूं मैं लिख देता हूं ट्रांसलेशनल। अगर किसी बुक में ट्रांसलेशनल, वैसे तो बेटे इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसलेशन मोशन कह सकते हैं, आप रोटेटिंग ना बोले, आपको तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ट्रांसलेशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, इसका मतलब होता है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी सीधी चल रही है तो उसका मतलब उसके अंदर कौन सा मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन है। दूसरा मोशन होता है आपका, मैं फिर इनमें डिफरेंसेस भी बताऊंगा, वैसे किताब में एक सर्कुलर मोशन। और क्लियर है? मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ, ना सर्कुलर पाथ। अगर कोई बॉडी सर्कल में जा रही है तो इसका मतलब कौन सा कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है। नेक्स्ट होता है आपके पास दैट इज वाइब्रेशनल मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन। इसमें बहुत डिफरेंस है, लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको ऑक्सीलेटरी मोशन, यानी when a body or object
मूव्स बैक और फ्रोथ, आगे यानी आगे और पीछे, और टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, बैक एंड फ्रो, यानी झूला ऐसे चलता है तो ये है बैक एंड फ्रो। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, जैसे आप एक रबड़ बैंड को पकड़े और ऐसे करके छोड़ दें तो ऊपर नीचे जाएगा, तो वो क्या कर रहा है हमारा टू एंड फ्रो मोशन। When a buoyant object moves back or forth or to and fro is known as vibratory motion। तो ये बेटे इनमें अगर मैं देखूं तो देखो किताबों में एक जैसे लिखे रहते हैं वाइब्रेशन, ऑक्सिलेटरी, ठीक है, लेकिन इनमें भी बहुत सारी टाइप होती हैं, तो वो उसको भी बारीकी से डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने सारे मोशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और तीसरा वाइब्रेटरी मोशन। तो ये बेसिकली हमारे 3 तरीके के मोशन होते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपने डाउट निकालते रहिए और फिर हम जरूर उस पर डिस्कशन जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।